Good morning, students. Today we are going to start our history textbook with the chapter number first, sources of history. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. This year we have to study the history of India in the post-independence era. Sources of modern history are different from these of the ancient and medieval history. We can study the history with the help of the various sources like written sources, material sources, oral sources, right? And in sources in the audiovisual medium. In the modern period, we have to take note of various sources in the regional, state, national as well as international level. We can write the history with the help of these sources. In medieval history, modern history, the most of the sources for providing the information about the history is the whatever that we observe. Okay, archaeological survey, right? Imprints, some coins, that were the possible sources for studying the medieval history or the ancient history. Now, the sources of modern history are different. Mostly the sources of modern history are written sources. Written sources like whatever the articles, whatever the written diaries are present, it becomes the sources of the history. Material sources like coins, museums, or any things or the things that were used by the historians for studying the history, it becomes the material sources. Oral sources like folk, right? The tales, कहानियां होती है, गाने होते हैं, कुछ चीजें होती है जो ओरल होती है, राइट? तो हमारी क्या बन जाती है? ओरल सोर्सेस बन जाते हैं हिस्ट्री की. लास्ट आपका ऑडियो विजुअल सोर्सेस. ऑडियो विजुअल सोर्सेस ये फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट है इंडिया के, या कोई आपकी फिल्म वगैरह है तो वो भी आपकी क्या बन जाती है? ऑडियो विजुअल सोर्सेस बन जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के पीरियड के लिए. ठीक, नाउ विल स्टार्ट स्टडी वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट, written sources. The name itself suggests written sources means what? Written sources means which having the written or print things, right? The first, written sources. We'll take example of written sources like newspaper, periodicals, diaries, reference book, correspondence, documents in archives, government gazette, postage stamp, encyclopedia. All these are the some example of the written sources. Okay, just a newspaper are considered as a fourth pillar of the democracy in the modern period. They are also major medium of the information. If you consider the period of from 1961 to 2000, 1961 और 2000 की पीरियड को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसमें न्यूज़पेपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. इसलिए न्यूज़पेपर क्या है? हमारे एक रिटर्न सोर्सेस है. ओके, सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट written sources, newspaper. Now through the newspaper what we get the lots of information about the political event, about the national event, about the international events, about the social, every event we observe or we read in newspaper and ultimately become the source of the history. What happened in the year 1971? We can take these events, highlights from the newspaper. What happened in sports of like example, your 2020 cricket, who won the World Cup. Again, with the sort of the historical information. From where do we get? From newspaper. We get this information. So ultimately, information क्या सोर्स हमारे क्या बन जाता है? न्यूज़पेपर सोर्सेस बन जाता है इन आपके हिस्ट्री का. ओके, newspapers, we get the information about the national, international affairs related to the art, politics, sports, literature, social event, political event from the newspaper. Okay, so most of the national newspaper, we have regional newspaper, again we have international newspaper who provide the all the information. Ultimately, they become the source of the history to us. Next, Press Trust of India. Okay, before starting the press PTI, we know the four pillars of democracy. The newspaper is one of the pillars of the democracy. PTI, Press Trust of India. After 1953, Press Trust of India has been important source of the primary जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो कौन प्रोवाइड करता था? हमको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. किसको? न्यूज़पेपर को, राइट? तो आर्टिकल्स है, फोटोग्राफ्स है, कोई इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक है, उसको कौन प्रोवाइड करता था हमको? 1953 से
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता था. ओके, आफ्टर दैट पीटीआई हैज नाउ स्टार्टेड ऑनलाइन सर्विसेज. अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट की है. उसकी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट है अपनी खुद की, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सभी तरह के मीडिया को. नेक्स्ट है आपका पोस्टेज स्टैम्प. अब पोस्टेज स्टैम्प सभी जानते हैं पोस्टेज स्टैम्प के बारे में. एवरीबॉडी नोज अबाउट द पोस्टेज स्टैम्प, राइट. पोस्टेज स्टैम्प जनरली stamps that we are again given by the डाकघर, पोस्ट ऑफिस से हमको पोस्टेज स्टैम्प दिए जाते हैं. अभी फिलहाल पोस्ट ऑफिस से इस बार काफी ज्यादा ट्रेंड कम हो चुका है पोस्टेज स्टैम्प का, बट स्टिल इट बिकम द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री टू अस. ओके, द पोस्टेज स्टैम्प डोंट रिवील एनीथिंग इट्स ओन. वो खुद से कुछ तो नहीं बताते, लेकिन उनकी जो थीम होती है ना वो सब कुछ बता दी जाती है. अब थीम कैसे होती है? सपोज वो पोस्टेज स्टैम्प की थीम होगी फार्मर की, सोल्जर्स की, या फिर वो किसी के बड़े पॉलिटिक्स पर्सन्स के ऊपर भी पोस्टेज स्टैम्प रिवील किए जाते हैं. तो ये थीम जो होती है ना वो हमारे लिए सोर्सेस बन जाती है हिस्ट्री की. बिकम द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री टू अस. दिस थीम बिकम द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री टू अस. Postage developed department issued the postage stamp and a wide variety and themes like political leader, flowers, animals, गोल्डन डायमंड जुबलीज ऑफ एनी इवेंट. कोई इवेंट है उसकी, कोई सिल्वर जुबली है, डायमंड जुबली है, गोल्डन जुबली है, ठीक है, 25 इयर्स हुए, 50 इयर्स हुए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वो थीम को कंसिडर करते हुए पोस्टेज स्टैम्प रिलीज करता है. तो वो थीम जो होती है हमारे लिए वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाती है. तो थोड़ा सा पोस्टेज स्टैम्प के बारे में जानते हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने इश्यू किया है जल कूपर स्टैम्प 1977 को. जल कूपर was the initial internationally acclaimed philatelist. philatelist का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो पोस्टेज स्टैम्प की थीम बनाता है. who prepare the theme for whom पोस्टेज स्टैम्प के लिए जो थीम प्रिपेयर बनाता है उसको कहते हैं फिलाटेलिस्ट. ओके, तो जल कूपर इज वन ऑफ द मोस्ट acclaimed international philatelist and expert in the subject of the postage stamp, who born in Parsi household in Mumbai. Jal Cooper edited Indian Stamp Journal. He was the founder of the first philatelic bureau of India, an office of that collected the stamp. He founded the Empire India Philatelic Society. He went on to write many books on the subject of philatelist. So that's why on the honoring the Jal Cooper, the Indian Post Office has revealed in 1977 the Jal Cooper postage stamp. Okay, there are some written sources of the history. Now let's see the another sources of the history. What is another source of the history? Material source. Okay, material. अब material sources में क्या होगा? यहाँ पे हम print media क्या इस्तेमाल कर रहे थे? हम print media इस्तेमाल कर रहे थे. What we are using? Print media. जो भी था हमारे पास वो रिटर्न था, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहे थे हम एज टू स्टडी द सोर्स, एज अ सोर्स फॉर द हिस्ट्री. द मटेरियल सोर्स. मटेरियल सोर्सेस क्या है? यहाँ पर कॉइन्स, म्यूजियम से, उसके अलावा है आपके थिंग्स, आर्ट थिंग्स, जो भी आर्टिकल्स, जो भी चीजें हैं जो इस्तेमाल की गई है वो हमारे लिए बन जाती है. डेली रूटीन्स के, रॉयल स्टैच्यूज है, ठीक है, उसके अलावा है रॉयल प्लेसेस है. ऐसे प्लेसेस को हम जाके विजिट करते हैं और उनकी हिस्ट्री जानते हैं, तो वो हमारे लिए अल्टीमेटली क्या बन जाती है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाती है. क्लोथिंग है, कपड़े वगैरह जो एंशिएंट पीरियड में या फिर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड वेर यूज्ड बाय द दैट टाइम पर्सन्स, बिकम द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री. ऑर्नामेंट्स, राइट, ऑर्नामेंट्स अगेन. सो दिस ऑल आर द थिंग्स, मटेरियल, जो हमारे मटेरियल है ना वो हमारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाता है. तो दैट्स व्हाई इट गिवन एज द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, मटेरियल सोर्सेस. ओके, तो वेरी फर्स्ट विल सी द here the two material sources are given in your books. First is your coins and second is museum. Now how the coin give the information about the history? The very first we can also understand the history with the help of the coins, how with the changing of the currency, right? अगर हम बचपन में आपने कभी देखा होगा कि मम्मी पापा के प्रेयर्स में the coins of the 1 rupee is different and they are also having the rupees coin of 5 पैसे, 10 पैसे, right? 10 पैसे के पैसे थे भी
20 पैसे के पैसे थे, 50 पैसे के पैसे थे, रुपी कॉइन है, रुपी कॉइन, ठीक है। और अब है 1 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन। ये सभी कॉइन क्या रिवील करते हैं भाई? उस पीरियड की हिस्ट्री रिवील करते हैं हमारे लिए, राइट। अपनी हिस्ट्री कैसे रिवील करते हैं हमारे लिए? उसके बाद छपाई होती है ना, जो हम इम्प्रिंट करते हैं कॉइन्स के ऊपर, वो डेडिकेटेड होते हैं किसी चीज को, ठीक है। उस वक्त उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या थी, वो डेडिकेशन किस और जो इम्प्रिंट किसके डेडिकेटेड किया है, तो वो कॉइन्स हमको रिपीट करते हैं, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कौन छापता है ये सब कॉइन्स का इम्प्रिंट्स? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु गिव द इम्प्रिंट्स ऑन द नोट्स एंड द coin on the coins. It has the headquarters in Mumbai. Coins from 1952, those used at the present, the metals used for making them, their different shape, the diversity of subject on them together help us to understand the importance of contemporary issue. जैसे मैंने आपको भी बोला कि contemporary issue समझने के लिए हमें ये कॉइन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। contemporary issue जैसे कि अगर फार्मर की इंपॉर्टेंस थी उस वक्त 1 रुपीज कॉइन पे क्या बनाया है, दो आपके कोई क्रॉप बनाए जाते हैं 1 रुपीज के कॉइन, सभी ने देखा होगा। तो ये क्या इंपॉर्टेंस शो करते हैं? कंटेम्प्रेरी इशू उस वक्त शो करते हैं, फार्मर की इंपॉर्टेंस शो करते हैं। अगर सपोज साइंस और टेक्नोलॉजी के कोर्स बताना है तो किस तरह की लैब बनाई जाती है, या फिर कोई साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड थीम को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वो इम्प्रिंट किए जाते हैं हमारे रुपीज के कॉइन्स के ऊपर। तो वो क्या शो करते हैं हमें कि कंटेम्प्रेरी इशू में हमारा इशू के उस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस थी साइंस और टेक्नोलॉजी की। इस तरह से हम थीम को इस्तेमाल करते हैं कंटेम्प्रेरी इशू को शो करने के लिए हमारे कॉइन्स पर, ओके। एंड दैट कन्वे द मैसेज टू द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कॉइन्स द कम्युनिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर्स, अगेन एज आई मेंशन यू। सेकंड, मटेरियल सोर्सेस, म्यूजियम्स। हाउ द म्यूजियम बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल सोर्स, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल कैरेक्टरिस्टिक। उस वक्त उस रीजन में उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था ये बताने के लिए म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजियम कैसे इंपॉर्टेंट है? ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द म्यूजियम, इवन इन आवर औरंगाबाद आल्सो वी हैव द म्यूजियम, आई थिंक एट कलेक्टर नियर द कलेक्टर ऑफिस, राइट। सो वी आल्सो बिकम द शो द कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है औरंगाबाद का, वो शो करने के लिए म्यूजियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाता है। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द म्यूजियम दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड द सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। They enable us to understand the history. जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है मुंबई का, रिजर्व बैंक म्यूजियम है पुणे सिटी का, ठीक है। वो क्या शो करते हैं? उस रीजन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शो करने के लिए वो हमारे लिए मटेरियल सोर्स बन जाते हैं, हमारे लिए बैकग्राउंड जानने के लिए हिस्ट्री का, ओके। नाउ then again, apart from the government museums, some private collectors also set up their own museum. They based on the distinctive subject. जैसे coins है, notes है, कोई अपना कलेक्शन भी रखता है coins का, notes का, stamps का, तो कलेक्शन जो म्यूजियम में कन्वर्ट करता है तो वो प्राइवेट म्यूजियम बन जाता है, ओके। नेक्स्ट सोर्स है हमारे लिए हिस्ट्री का ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्स है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट इज द ओरल सोर्स। ओरली जितने भी बातें, जितने भी हम टेल कहानियां कहते हैं, राइट, फोक सॉन्ग है, फोक टेल्स है, राइट, कहानियां, these all become the oral sources for the history, okay। Now let's take the look to the oral sources. The sources include the folk tales, again folk songs, proverbs, ballads, ovis. Ovis means rhymes. So in Marathi we use the word ovis. Povadas, again Lokshaya Anna Bhau Sathe, one of the activists, and Shahid Amar Bhau Sathe, Shahid Amar Sheikh, sorry, during the Sanyukta Maharashtra movement, who gave the most of the folk povadas, again become the very important oral sources for the history. You can take the example that Avahan ये सोर्स ऑफ कविता की, ये कुसुमाग्रज ने दी थी कविता का सोर्स। कुसुमाग्रज पोएट है मराठी के, जिन्होंने आवाहन ये पोएम का सेट लिखा था, और जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि साइनो इंडियन रिलेशन, इंडिया और चाइना के रिलेशन और उनके वॉर की कंडीशन, और उसके दौरान इंडियन सी कंडीशन थी, वो उन्होंने दर्शाया था आवाहन इस पोएट सेट में, ओके। सो इन दैट वे
oral sources become again the one of the sources of the history. Next है हमारा audio visual sources. ऑडियो विजुअल सोर्सेज, रिसेंट सोर्स है, मॉडर्न सोर्स है हमारे हिस्ट्री का. ऑडियो विजुअल सोर्सेज टेलीविजन है, उसके अलावा है रेडियो है, क्योंकि इंटरनेट है, फिल्म्स है. दे आर बिकम द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ द हिस्ट्री. सो दैट्स व्हाई दे आर कम अंडर द ऑडियो विजुअल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री. In this we see the first Film and Television Institute of India. Film and Television Institute of India, Government of India started the Film and Television Institute of India in Pune 1960. In Pune 1960 में इसको फर्स्ट स्टार्ट किया गया और इसका मेन एम क्या था? That we are going to see. To Indian News Review has produced the various news reels on important events of the politics, social issues, art, sports and culture. And this department has to produce the various documentaries on prominent social leaders, on people who made the major contribution for the country and about the important location of India. And these news release the documentaries are useful to the studying the history of modern India. ठीक है, अभी के फिल्म टेलीविजन क्या करता है? जितने भी न्यूज रील प्रिपेयर करना, किसके ऊपर? सोशल इवेंट के ऊपर, कोई पॉलिटिक्स लीडर के ऊपर, या फिर किसी तरह के हर लोकेशन के ऊपर, इंडिया के बारे में, ठीक है, कोई इंडिया के फीचर्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करते थे. और डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करने के बाद किसका होता है? फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. और उस वक्त इंडिया की कंडीशन क्या है उस, तो इस तरह से इट बिकम द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री. ठीक, अगर सपोज देखो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स और एनी पॉलिटिकल लीडर, फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ द महात्मा गांधी. अल्टीमेटली द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है, तो गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या किया? फिल्म बनाई है और पूरी उनकी स्टडी करने के बाद उनकी बायोग्राफी बनाई है और वो क्या कर रहे? शो कर रहे हैं. बायोग्राफी क्या बन जाती है? फिर सोर्स ऑफ द हिस्ट्री बन जाती है हमारी. ओके, it become the audiovisual source of the history. Till now we have seen some important sources for writing the history of modern India. The times in 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. However, new sources are coming forth. For example, during the transformation from landline telephone, cell phone gadgets called pager came in acting the people. ठीक है, इसके अलावा हमारे ये सोर्सेज भी इनसफिशिएंट हो रहे हैं. अभी इनसफिशिएंट सोर्सेज, ठीक है, इनसफिशिएंट हो रहे हैं. अब नए गैजेट्स आ रहे हैं, जैसे कि पेजर है. अभी तो पेजर तो काफी पुराना हो चुका है. सबसे इम्पोर्टेंट तो इंटरनेट ही है. ठीक, ये अल्टीमेटली सोर्स बन गया हमारे कोई भी हिस्ट्री का. अगर हमें कोई इवेंट के बारे में जानना है तो व्हाट वी डू, वी जनरली यूज टू गो थ्रू द इंटरनेट, राइट? एंड इंटरनेट प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन. बट information whatever we are taking from the internet should be checked authentically इसको चेक करना चाहिए वो सही है या गलत है. ओके, so in that way the internet become the ultimate source of the history. Now it has become comparatively case easy to study the history with the help of all these sources of the history. Okay, so hope you all have understood all the sources of the history: written, material, oral and audiovisual sources. Okay, and here we finish the chapter. Thank you.